ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کی ہلاکت کے بعد امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایک طرف جہاں ایران پر حملے جاری ہیں، وہیں یہ جنگ پورے خطے میں پھیلتی نظر آ رہی ہے۔ سعودی عرب اور کویت سمیت مشرق وسطیٰ کے متعدد ممالک ایرانی میزائلوں کی زد میں ہیں۔ آج ایران نے کویت، سعودی عرب اور قطر میں اہداف کو نشانہ بنایا اور متعدد امریکی جنگی طیارے گر کر تباہ ہو گئے ہیں۔ اس دوران بیروت اور جنوبی لبنان میں ہونے والے اسرائیلی حملوں میں کم از کم 31 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ تمام اہداف پورا ہونے تک جاری رہے گی۔ تو کیا ایران سے شروع ہونے والی یہ جنگ پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے؟ اور ایران مڈل ایسٹ کے ممالک کو نشانہ بنا کر کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ میں ہوں غضنفر حیدر، ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو دکھائیں گے کہ ایران کی چھتوں اور سڑکوں سے یہ جنگ کیسے نظر آتی ہے اور اب تک اس جنگ کی کیا قیمت ادا کی جا چکی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ، ایران کا آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا دعویٰ اور سعودی اسٹیٹ ٹی وی کا کہنا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی آئل ریفائنری راس تنورہ پر ڈرون حملے کے بعد اسے بند کر دیا گیا ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیلی حملوں کے 3 دن بعد اس مہم جوئی کے اثرات توقع سے کہیں زیادہ گہرے مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اب بات ایران سے باہر نکل گئی ہے۔ پورے مشرق وسطیٰ میں حالات کشیدہ ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر فضائی حملوں کے علاوہ ایک نیا محاذ کھول دیا ہے اور لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ گروہ حزب اللہ پر بھی فضائی حملے کیے ہیں، جس نے گزشتہ روز محدود تعداد میں راکٹ اور ڈرونز اسرائیل پر فائر کیے تھے۔ ایران کی جانب سے حملوں میں اسرائیل میں 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ لبنان پر حملہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ملک ابھی تک اس طویل جنگ کے اثرات سے باہر نہیں آیا، جس نے 18 ماہ قبل حزب اللہ کو اپاہج کر دیا تھا اور ان سے بہت سے مضبوط اڈے بھی تباہ کر دیے تھے۔ اسرائیل نے حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملوں کی یہ تصاویر جاری کی ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ بیروت اور جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 31 افراد ہلاک اور 140 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے بیروت میں حزب اللہ کے سینئر رہنما کو نشانہ بنایا ہے۔ ادھر جواب میں ایران نے اسرائیل میں اہداف کو نشانہ بنانے کے علاوہ خطے میں واقع امریکی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ کویت میں حکام کا کہنا ہے کہ 2 جنگی طیارے عراق کے ساتھ اس کی سرحد پر گر کر تباہ ہو گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر شیئر ہونے والی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ متعدد جنگی طیارے گر رہے ہیں۔ امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ طیارے شاید فرینڈلی فائر کی وجہ سے گرے ہیں۔ اس واقعے کی مزید تحقیق کی جا رہی ہے۔ اور ادھر ملک کے اندر کام کرنے والی ایرانین ریڈ کریسنٹ کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے حملوں میں اب تک 550 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ ان اعداد و شمار میں سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں یا نہیں۔ مزید تفصیلات جو انوڈ کی اس رپورٹ میں، جسے پیش کر رہی ہیں ختیجہ عارف۔ تہران کی چھتوں سے یہ جنگ ایسی نظر آتی ہے۔ جنگ اب تیسرے دن میں داخل ہو چکی ہے۔ حملوں کی شدت اور تباہی کا اندازہ اب واضح طور پر نظر آ رہا ہے اور اس کی قیمت بھی۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ سرکاری ٹی وی کو نشانہ بنانے والے ایک میزائل نے قریب کے ایک ہسپتال کو بھی نقصان پہنچایا۔ یہ انکیوبیٹر جو سڑک پر آ گیا ہے، اس میں بظاہر ایک نومولود بچہ بھی ہے۔ اس جنگ کے پہلے ہی دور تک اثرات نظر آ رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جاری کردہ ویڈیو میں ایرانی حکومت کی ایک اور عمارت کو تباہ ہوتے دکھایا گیا ہے۔ یہ حملہ ملک کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی ہلاکت کے صرف 1 دن بعد کیا گیا۔ پورا دن ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکلے۔ وہ اس شخص کے لیے سوگ منا رہے تھے جسے مذہبی حکومت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ہر طرف غم اور غصہ تھا۔ یہ غصہ اب پورے خطے میں پھیلتا جا رہا ہے۔ اسرائیل میں ہلاکتوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ بیت شمش نامی قصبے میں ایک میزائل حملے میں کم از کم 8 افراد مارے گئے۔ یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے۔ یہ مناظر یروشلم کے ہیں۔ جنگ سے پہلے ایران کی بحریہ نے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی اپنی مشق کی تھی۔ یہ 10 کلومیٹر چوڑا سمندری راستہ ہے جہاں سے دنیا کی ضرورت کا تقریباً 20% تیل یہیں سے گزرتا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اب یہ راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ اس سے ایران کے خلیجی ہمسایوں جیسے قطر، بحرین اور متحدہ عرب امارات کی پریشانی بھی بڑھے گی۔ یہ ممالک ایک غیر محفوظ خطے میں خود کو محفوظ جگہ کے طور پر پیش کرتے ہیں، مگر اب جنگ ان کی دہلیز تک آتی جا رہی ہے۔ اب بھی حالات واضح نہیں کہ ان کی اموات کیسے ہوئی، لیکن 3 امریکیوں کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ یہ اس جنگ میں پہلی امریکی ہلاکتیں ہیں اور شاید آخری نہیں۔
गुज़िश्ता रात इसराइल ने लुबनान में ईरान के इत्तेहादी हिजबुल्लाह को निशाना बनाया। खदशा है कि बरतानिया के फौजी अड्डे पर होने वाला ड्रोन हमला यहीं से किया गया हो। सदर ट्रंप का कहना है कि जंग मंसूबे से तेज़ रफ्तार से चल रही है और उन्होंने कामयाबी का दावा किया है, लेकिन जंग के नताइज अक्सर गैर मुतवक्को और काबू से बाहर हो जाते हैं। अभी सिर्फ 3 दिन गुजरे हैं और उसके असरात पहले ही नज़र आना शुरू हो गए हैं। जो इनवुड की रिपोर्ट आप सुन रहे थे खतीजा आरिफ से। और इस बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कंदील अब्बास। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि इस जंग को शुरू हुए 3 दिन हो चुके हैं। अमेरिका और इसराइल ये दावा कर रहे हैं कि ईरान की टॉप कमांड को ख़त्म कर दिया गया है। तो ये रजीम चेंज या क़यादत की तब्दील करने का जो इनका हदफ है वो क्या अब भी मुमकिन है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर जो फौजी कार्रवाई हुई है उसके बारे में कुछ कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, क्योंकि रिजीम चेंज और इसराइल की हिफाजत ये दोनों ऐलानात होते रहे हैं, लेकिन दोनों की कोई बेस नजर नहीं आ रही। इसलिए कि अगर ईरान में रिजीम चेंज का उनका कोई प्लान था तो इसके लिए कोई अल्टरनेट होना चाहिए था। कि ईरान के अंदर अभी तक कोई भी अल्टरनेट पॉलिटिकल लीडरशिप हमें नजर नहीं आती, ना कोई ऐसी मूवमेंट मौजूद है। और मूवमेंट अगर चंद लोग निकलते भी हैं तो उनके लिए लीडरशिप नहीं है। हाँ, एक नाम जो लिया जा रहा था रजा शाह पहलवी के बेटे का, वो भी ईरान के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ही लो लेवल पे है और उनके हमायत में कोई बात नहीं हो रही, इसलिए कि वो साबिक जो इनकलाब आया था वो इन्हीं डिक्टेटर्स के खिलाफ आया था और बादशाह के खिलाफ आया था। अभी उनकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। अब इस सूरत हाल में रिजीम अगर चेंज करने की भी कोशिश करते हैं तो मेरा ख्याल है वही सूरत हाल पैदा होगी जो माजी में ये अमेरिका गलती कर चुका है, अफगानिस्तान में, इराक में, लीबिया में और कई और ममालिक में। वहां पे अगर हुकूमत हटा भी गई तो मेरा ख्याल है एक बड़ा खतरनाक किस्म का माहौल पैदा हो जाएगा और उससे ईरान के अंदर तो मिलियंस ऑफ पीपल जो स्टिल दे आर इन सपोर्टिंग देयर स्टेट। जी डॉक्टर साहब, ये बताएं कि पिछली बार जो है वो ईरान के जो हसास अहदाफ हैं उनको बड़ी आसानी से अमेरिका और इसराइल ने जो है वो निशाना बनाया था। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है क्या? ईरान के अंदर कार्रवाई करना या उनके दफाई अहदाफ जो है उनको निशाना बनाना इतना ही आसान है? देखिए, पिछले 47 ईयर से ईरान अंडर सैंक्शंस है और ईरान की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो बहुत लो है। उसके मुकाबले में जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी इसराइल और अमेरिका के पास है अलॉन्ग विद सम यूरोपियन कंट्रीज, वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। मेरा ख्याल है जो ट्रेस एंड ट्रैकिंग सिस्टम है उनका बहुत एडवांस है और उसकी वजह से वो इस काबिल हुए हैं कि ईरान की टॉप लीडरशिप को ट्रेस एंड ट्रैक के जरिए पिन पॉइंट करके अटैक कर सके। लेकिन जाहिर है कि ईरान का अपना एक बड़ा कम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिस्टम है। उस सिस्टम के अंदर उन्होंने कम से कम 4 लेयर्स के साथ अपना वो सिस्टम बनाया हुआ। अगर एक लेयर हटती है तो सेकंड के बाद थर्ड और फोर्थ। तो यही वजह है कि मेरा ख्याल है टॉप लीडरशिप को पिछली दफा भी यानी 8 माह पहले भी हटाने के बाद वो रिजीम चेंज की तरफ नहीं जा सके और इस दफा भी यानी सुप्रीम लीडर को हटाए जाने के बावजूद अभी तक आसार नजर नहीं आ रहे कि फौरी तौर पर कोई आके ईरान की इनकलाबी हुकूमत को रिप्लेस कर सकेगा। अच्छा, ये लड़ाई जो है ये इस वक्त पूरे खत्ते में फैलती नज़र आ रही है, तो इसका आगे क्या होगा? एंड गेम क्या है? क्या ये ईरान के लिए फ़ायदेमंद होगा या ये बैकफायर कर सकता है? मेरा ख्याल है ये बड़ी हसास सवाल है, इसलिए कि ईरान ने जंग से पहले कहा था कि अगर ईरान पर जारियत होती है उस जंग को एक इलाकाई जंग में तब्दील कर देगा और उन्होंने ऐसा करके दिखाया और इसकी वो पोटेंशियल भी था उनके पास। उसकी वजह यह है कि ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है उनका ख्याल ये कि वो न्यूयॉर्क या वाशिंगटन तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन इस इलाके में जितने अमेरिकी बेसेस हैं या इसराइल है वहां से ईरान के ऊपर अटैक होते हैं। और जाहिर है कि जवाब में ईरान ने यह कहा था कि हम इन बेसिस को अरब ममालिक की सरजमीन नहीं समझेंगे बल्कि दुश्मन का लेजिटिमेट एक लैंड समझ के उसको अटैक करेंगे। और अभी तक उन्होंने फर्स्ट स्टेज पर जो अमेरिकी बेसिस हैं और इसराइल है उस पर डायरेक्ट अटैक किए और उन्होंने वाज़ेह पैगाम अरब ममालिक को यह दिया था कि हमारी आपके साथ दुश्मनी नहीं है और हम आप पे अटैक नहीं करना चाह रहे। लेकिन जहां पे भी अमेरिकन इंटरेस्ट होगा, वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, स्ट्रेटेजिक हो या मिलिट्री हो, हम उसको टारगेट करेंगे और उन्होंने करके दिखाया। मेरा ख्याल है कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर में बड़ा खतरनाक नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान ने बड़ी मुश्किल से एक नॉर्मलाइजेशन सऊदी अरेबिया के साथ की थी, कतर के साथ उनकी अलाइनमेंट बनी हुई थी और इस खित्ते में बड़ा एक पीस आ रहा था। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके
बाद जो भी हुकूमत ईरान में आती है या यही हुकूमत अगर कंटिन्यू करेगी तो किसी सूरत शॉर्ट टर्म में अच्छे ताल्लुकात उनके हमसायों के साथ नहीं बन सकेंगे और इसकी वजह से इस पूरे खित्ते में जो कि एनर्जी का हब है एक हमें लॉन्ग टर्म अनरेस्ट नजर आएगा। डॉक्टर कनील अब्बास, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आलमी तेल की कीमतों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। वजह है मशरक़ वस्ता में जारी जंग, जो कि तवानाई की सप्लाई के अहम रास्तों को खतरे में डाल चुकी है। आज ट्रेंडिंग में हम इसी पे बात करेंगे। हाल ही दिनों में आबनाए हुर्मुज़ के करीब मुतअद्दिद बहरी जहाज़ों पर हमले हुए हैं, जिसके बाद इस रास्ते से बैनुल-अक़वामी बहरी जहाज़ों की आमद-ओ-रफ़्त तकरीबन रुक गई है। सूरत हाल अगर कशीदा रही तो कीमतों में मज़ीद इजाफे का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। आबनाए हुर्मुज़ एक तंग समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया के तकरीबन 20% तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है। हालिया कशीदगी के बायस कई टैंकर्स या तो वापस मुड़ गए हैं और कई इंतज़ार कर रहे हैं, जिससे आलमी सप्लाई पर दबाव बढ़ रहा है। माहिरीन का कहना है कि अगर कशीदगी तवील रही तो कीमतें $100 फ़ी बैरल या इससे भी ऊपर जा सकती हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक ने ऐलान किया है कि वो अप्रैल से पैदावार में 2,06,000 बैरल फ़ी दिन इजाफा करेंगे, लेकिन माहिरीन का कहना है कि ये महदूद रिलीफ देगा क्योंकि असल मसला बहरी रास्तों की बंदिश है। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से कीमतें बराह रास्त सार्फिन तक पहुँचती हैं। रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया महंगी होंगी। माहिरीन कहते हैं कि तवानाई के दीगर शोबे जैसे कि घरेलू और सनती सार्फिन के बिजली के बिल भी बढ़ सकते हैं। ये महंगाई इंडिया, पाकिस्तान और अफ्रीका जैसे तेल दरामद करने वाले ममालिक को ज़्यादा मुतासिर कर सकती है। ये तब्दीलियाँ आलमी तवानाई और मालियाती मंडियों पर वाज़ेह असर डाल सकती हैं और अगर सूरत हाल में तब्दीली ना आई तो ये आम सारिफ के रोज़मर्रा अखराजात पर भी महसूस होंगी। तवीलुल मुद्दती बंदिश की सूरत में जनूबी एशियाई ममालिक पर इसके असरात इंतहाई संगीन हो सकते हैं। मसलन तेल की कीमतों में सिर्फ $1 के इजाफे से इंडिया का दरामदी बिल $2 अरब बढ़ सकता है। अब अगर आबनाए एक हफ्ते से ज़्यादा बंद रहे तो तेल की कीमतें $100 तक पहुँच सकती हैं और इंतहाई सूरत में $150 अरब तक भी जा सकती हैं। इसी तरह पाकिस्तान में खुराक की महंगाई में 30 से 40% तक इजाफा देखा जा सकता है। मजमूई तौर पर ये आबनाए आलमी तजारत का एक अहम मरकज़ भी हैं, इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि जनूबी एशियाई ममालिक की अशिया और सामान की तजारत पर भी इसके असरात पड़ेंगे। इंडिया और कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने आज दिल्ली में मुतअद्दिद मुआहदों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें एक लॉन्ग टर्म डील भी शामिल है जिसके तहत कनाडा इंडिया को यूरेनियम सप्लाई करेगा। ये मुलाकात दोनों रहनुमाओं की जानिब से 2023 में सिख अलहदगी पसंद रहनुमा की हलाकत के बाद से कशीदा होने वाले ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिश है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के पेश नज़र तेल अवीव, दुबई, दोहा और कई बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट से परवाज़ें मुअत्तल हैं। कई ममालिक अपने शहरियों को बहरीन, कुवैत, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात का सफ़र सिवाय इंतहाई ज़रूरी वजूहात के ना करने की हिदायत दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी रियासत टेक्सास में शूटिंग के वाक़े में 2 लोग हलाक जबकि 1 दर्जन से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए थे। FBI का कहना है कि वाक़या मुमकिना तौर पर दहशतगर्दी से जुड़ा है। हमला आवर की पहचान हो चुकी है। वो एक सेनेगल नजाद अमरीकी हैं, हालांकि इनसे मुताल्लिक बहुत ज़्यादा तफसीलात अभी सामने नहीं आई। अब बात एक और जंग की। खदशा है कि इथियोपिया एक और जंग के दहाने पर है। मुल्क में होने गुज़िश्ता जंग को अभी 3 बरस ही हुए हैं और मुल्क का शुमाली खित्ता टिग्रा मुमकिना तसादुम का मरकज़ बन सकता है, क्योंकि वहाँ की हुक्मरान जमात का कहना है कि इथियोपिया की हुकूमत के साथ 2022 में होने वाला अमन मुआहिदा मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं हुआ। खदशा है कि इलाकाई और मशरिक़ वस्ता की नई सिफ़बंदियाँ सूरत हाल को मज़ीद तबाहकुन बना सकती हैं। BBC के क्लेरन बेल ताल की रिपोर्ट एहसन महमूद पेश कर रहे हैं। अफ्रीका की सबसे खूनरेज़ जंगों में से एक के 3 साल बाद शुमाली इथियोपिया में एक बार फिर कशीदगी बढ़ रही है। फ़ौजियों की नकलो हरकत की इत्तलात मौसूल हो रही हैं और छोटे पैमाने पर झड़पें पहले ही हो चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि सूरत हाल गैर मुस्तहकम है और तेज़ी से बिगड़ रही है। बहुत से लोगों को खदशा है कि इस बार मुमकिना जंग पहले से भी ज़्यादा तबाहकुन हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि इसमें कई दीगर ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। तिग्रे, जो दोबारा इस जंग का मरकज़ बन सकता है, वहाँ लोग खौफ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। Prices are rising daily. कीमतें रोज़ाना बढ़ रही हैं। ताजिर अपने पास मौजूद अशिया छुपा रहे हैं और इन्हें गैर मुनसिफाना तरीके से तकसीम कर रहे हैं। ये सब आने वाली जंग के खदशे के असरात हैं।
ہم سن رہے ہیں کہ جنگ یہاں سے شروع ہو سکتی ہے اور غیر واضح اور پریشان کن اطلاعات گردش کر رہی ہیں۔ تگرے کے لوگ شدید اضطراب کی کیفیت میں ہیں۔ are in a state of distress. گزشتہ جنگ میں 2 مرکزی پلیئرز تھے، ایتھیوپیا کی حکومت جسے ایریٹریا کی حمایت حاصل تھی، اور ٹگرے پیپلز لبریشن فرنٹ جو ایریٹریا سے جڑے اپنے علاقے پر کنٹرول کے لیے لڑ رہی تھی۔ It's a two-page document with 12 paragraphs. 2022 میں ایک امن معاہدہ طے پایا تھا، لیکن ٹی پی ایل ایف کا کہنا ہے کہ اس کی کئی دفعات پر مکمل عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ گزشتہ جنگ کے خاتمے کے بعد کے 3 برسوں میں اتحاد بدلتے رہے ہیں۔ ایتھیوپیا اور ایریٹریا کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں اور اب وہ کھلی دشمنی کی حالت میں ہیں۔ اسی دوران ٹی پی ایل ایف ایریٹریا کے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ ایتھیوپیا دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا لینڈ لاکڈ ملک ہے، اور اس کے رہنما کہتے ہیں کہ سمندر تک رسائی حاصل کرنا ان کے لیے ایگزسٹینشل ایشو ہے، جس نے ایریٹریا کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہمسایہ ملک سوڈان میں جاری خانہ جنگی اس صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا سکتی ہے۔ اس بات کے کافی امکانات ہیں کہ سوڈان کی جنگ اور ایتھوپیا کی جنگ ایک ہو جائے، کیونکہ ان دونوں جنگوں میں شامل فریق پہلے سے ہی سرحد کے دونوں طرف ہونے والی جنگ میں شامل ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایتھوپیا کی حکومت، ٹی پی ایل ایف اور ایریٹریا کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اور کچھ حد تک وہ سوڈان کی جنگ میں بھی شامل ہیں۔ تو صرف باہر سے ان کو حمایت دینے والے نہیں، بلکہ وہ بھی اس جنگ میں شامل ہیں۔ تو اس تنازع کو ہولناک کہنا ایک انڈر اسٹیٹمنٹ ہوگا۔ حریف خلیجی ممالک متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب اطلاعات کے مطابق سوڈان میں مخالف فیکشنز کے ساتھ منسلک ہیں، اور یہ خدشہ بھی موجود ہے کہ وہ ایتھیوپیا اور ایریٹریا کے تنازع میں بھی ایسا ہی کریں۔ یہ دونوں مشرق وسطیٰ کے ممالک ریڈ سی کے اہم تجارتی راستوں کو محفوظ بنانے اور خطے میں اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنے کے لیے ہارن آف افریقہ میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس میں شامل تمام فریقوں کے لیے یہ ایک انتہائی خطرناک اور غالباً نہایت تباہ کن جنگ ہو سکتی ہے۔ اگر تنازع بھڑک اٹھتا ہے تو ممکن ہے کوئی فاتح نہ ہو، بلکہ صرف نقصان اٹھانے والے ہوں، ایتھوپیا میں، تگرے میں اور پورے خطے میں۔ اور تگرے میں وہ لاکھوں لوگ جو پچھلی جنگ کے صدمے سے ابھی تک ریکور نہیں کر پائے، ایک اور ممکنہ جنگ کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں۔ آج بس اتنا ہی۔ غزنفر حیدر کو بھی اجازت دیں۔